Welcome to my YouTube channel IIT Physics Academy by Suren sir. My dear student, today we will learn very important 20 MCQ of chapter number 2 electrostatic potential and capacitors standard 12 physics subjects. Let's start MCQ question number 1. Question number 1 is the dimensions of fall of the potential per unit distance are given by option number A ml t to raise minus 3 a की power minus 1 and B option is ml square t to raise minus 2 a की power minus 1. Option C ml square t to raise minus 2 and a की power minus 3 and option number D is ml t to raise minus 2 and a की power minus 2. So there are 4 options. Give the correct answer within 5 seconds in comment box. Do it. What is correct answers of question number 1? Tell fast. So correct answers of question number C is option number C ml square t to raise minus 2 a की power minus 3. This is the correct answers of question number 1. Now question number next. Question number 2. Which of the following is blocked by a capacitor? Question. Listen carefully. Which of the following is blocked by a capacitor? Option number A AC, option number B DC, option number C both AC and DC, and option number D neither AC nor DC. Okay, give the correct answers. ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को लगभग पता होगा. ओके, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर करेक्ट है. तो you have a 5-6 seconds. You have do fast. Now correct answers of question number 2 is option number B DC. This is the correct answers. Okay, now question number 3rd. Two copper spheres are the same radius. Two copper spheres of the same radius and one solid and other is the hollow are the charged to the same potential. Which will have more charge? Option number A solid sphere, option number B hollow sphere, option number C both will have a equal charge, option number D none of these. Think about what is correct answer of given question. Question number 3. Two copper sphere of same radius है and solid and other hollow charge are the same potential. मतलब radius and potential both are same. तो what will have the more charge? तो correct answers of question number 3rd is option number C both will have a same या equal charge. तो correct answers is C options both will have a equal charge. This is the correct answer of question number 3. Now question number 4. The capacitance of capacitor will decrease if we introduce a slab of कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 जिंक एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. ओके, तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ डैश कॉपर एल्युमिनियम जिंक नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है. ओके, now next question number 5. You can see two capacitor of capacitance 6 microfarad and 4 microfarads are put in series and voltage is 120 volt battery. What is the potential difference across the 4 microfarad capacitor? Okay, तो find the potential difference of the 4 microfarad capacitor. तो first two capacitor is given that you think about 6 microfarad and 4 microfarad and then put in the series और सीरीज कनेक्शंस है. तो कैपेसिटर को डायरेक्ट हम उसको टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे. इसके बाद फिर हम
उसके चार्ज को गेट करेंगे और चार्ज को गेट करने के बाद उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 72 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 60 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर सी है 48 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है 0। ओके, थिंक अबाउट, जल्दी से आपको सॉल्व करना है। अगर सीरीज में कैपेसिटर होता है तो फार्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। कहने का मतलब ये दो कैपेसिटर है माइक्रोफैराड में, इसका एलसीएम लीजिए तो इसका आंसर होगा, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 12 होगा मतलब, एंड ये होगा 6 2 जा 12, 2 प्लस 3 मीन्स 5/12। तो 1/c मतलब 5/12 होगा। ओके, इफ़ यू फाइंड द कैपेसिटेंस रिजल्टेंट तो कितना हो जाएगा, यू कैन get C answer, C is the capacitor equal to 12/5. तो total capacitance you have got 12/5 farad microfarad, but we want to find the Q। तो Q कैसे निकालेंगे, ठीक है, Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई बी, यू नो C इक्वल टू Q बाई बी, तो Q इक्वल टू सी बी। ओके, तो हमें निकालना है Q इक्वल टू सी बी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी वैल्यू है C की, C की वैल्यूज यू हैव गॉट 12, कितनी वैल्यू है Q की, 12/5 इंटू कितना है वोल्टेज 120, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। ओके, तो 24 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आंसर, ठीक है, 24 इंटू 12 288, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा, ठीक है। तो 288 क्या होगा, माइक्रोफैराड है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई है, 288, Q की वैल्यू कितनी आई है 288, और हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज, तो यू नो C इक्वल टू Q बाई बी। तो हमें B निकालना है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C, Q है 288 एंड देन C इज़ कितनी वैल्यू दी गई है 4 माइक्रोफैराड, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, तो कितना आएगा 72 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following form is the energy stored in a capacitor, charge, option number B potential, option number C capacitance, option number D electric field। Tell fast what is correct answers of question number 6। This is very easy, everyone can give the correct answers। Okay, comment fast in comment box what is correct answer of question number 6। In which of the following form is the energy stored in capacitor, कौन सा आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 27 drops of the mercury are the charge simultaneously to the same potential of 10 volt, means B is given that 10 volts and then say 27 drops of the mercury is given there, तो you will compare to find the radius of that। इसके बाद जो वैल्यूज़ आती है उसको कंपेयर करना है, हमें पोटेंशियल के फॉर्म में निकालना है, तो उसकी वैल्यूज़ कितनी आती है हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ द मर्क्यूरी अगर हम कहते हैं तो कितना होता है 27 इंटू स्फीयर है, इस ड्रॉप क्या है 1 टाइप्स ऑफ द स्फीयर है, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू द कितने बराबर है, एक बिग ड्रॉप के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 4/3 का 4/3 4/3 कैंसिल, पाई 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 कैंसिल, तो यहाँ पे है 27 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल इसकी वैल्यूज़ अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, आर की वैल्यूज़ कैपिटल आर इक्वल टू 3 स्मॉल आर। क्यों, ये स्क्वायर रूट लोगे तो आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब है, 27 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 3 आर गेट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है V। यहाँ पे जो Q की वैल्यू है तो Q क्या लिख सकते हैं, जबकि हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। लेकिन कैपेसिटर ऑफ द स्फीयर होता है फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू आर होता है, और भी ये वोल्टेज है, तो ये Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल B1 है, क्या है, पोटेंशियल इज़ B1, तो यहाँ पे B1 नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है B1। अब दूसरी वैल्यूज़ के लिए हम लिखते हैं Q की वैल्यू, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा, Q इक्वल टू कितना होगा 27 टाइम्स है तो कितना है 4 पाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको वैल्यू मिली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम जो वैल्यूज़ थी वो कितनी थी 3 स्मॉल r इंटू B2, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस होगा जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यूज़ कितनी था, तो वहाँ पे वोल्टेज हम इसको कंपेयर करें तो पहले वाली इक्वेशंस हमारी क्या थी, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 3r B2 है, और उसके पहले वाली वैल्यू क्या थी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉन 3, ठीक है r, और यहाँ पे लिखेंगे B2 इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हमारी कितनी थी 27 ड्रॉप था, 27 इंटू 10 वोल्ट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है B2 की जो वैल्यूज़ आएगी B2 इक्वल टू 270/3, तो कितना आ जाएगा 90, तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी 90 वोल्ट, जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी 90 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, the amount of the work required to increase the distance between the -6 microfarad to 4 microfarad from 6 centimeter to 18 centimeter। ओके, तो डू इट, जल्दी से इसको करें। कैपेसिटर की वैल्यूज दी गई है और यहाँ पे डिस्टेंस भी दी गई है, और हमें फार्मूला लगाना है वर्क डन V125 कितना इंक्रीज होगा। तो डू फास्ट, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, वर्क डन का फार्मूला लगाइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फार्मूला लगाइए, वैल्यू करिए, कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 कितना होगा 12, एंड देन हियर यू कैन टेक -6 on 4 देन 2 एंड दैट कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई विद बोथ, तो 24 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर V 2.4 joule is the correct answers of the question number 8. Now next question, question number 9. This is the very easy, everyone know very well कि and the electron initially at the rest is the accelerator through the potential difference of the 1 volt. The energy gained by the electron is 1 electron volt equal to, everyone know very well कि what is correct answer in the joule. Okay, so this is the equivalent to 1 volt equal to, everyone know very well 1.6 into 10 to the minus 19 joule. So this is the correct answers of question number 9. Okay, so answer of question number 9 is V is the correct answers 1.6 10 to the minus 19 joule. Okay, next question, question number 10. ये word sitting on a high power line. So what is correct answers of question number 10? Option number A gets the killed instantly, option number B gets a mild shocks, option number C gets a fatal shocks, and option number D is not the affected practically. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एवरीवन कैन गिव द आंसर विद इन 5 सेकंड्स। तो गिव द करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स, जल्दी से कमेंट करिए व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज, आई थिंक सभी ने करेक्ट आंसर दिया होगा। तो आंसर सुनिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट इफेक्टेड प्रैक्टिकली। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए
joule, option number B coulomb, option number C newtons per coulomb, and option number D is erg. So what is correct answers of a question number 11? This question is very easy, and this is the correct answer. Correct answers of question number 11 is option number A, joule is the correct answers of question number 11. Now next question. Question number 12. If a positive charge is moved from the low to high potential region, the electric potential energy, option number A decreases, option number B increases, option number C remain the same, and option number D may increase or decrease. The correct answers of question number 2 is B. B is the correct answers, increases. Okay, the potential energy will increases. This is the correct answers of question number 12. Now next question, question number 13. A capacitor is connected across a battery and the plate separator of capacitor is increased without removing the battery. Then what is correct answers of the question number 13? Option number A, capacitance will increase, charge stored will increase, energy stored will decrease, and potential difference will increase. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज. दिस इज द option number C is the correct answers of question number 13. Okay, now next question number 14. Two capacitor of 3 microfarad and 6 microfarads are connected in series of the potential 12 volt and the PD across the 3 microfarad and 6 microfarad of capacitor respectively will be. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज़ में है, तो इसकी वैल्यूज़ को हमें निकाल लेना होगा. इसके बाद इसके सेपरेट कैपेसिटर पे इसके पोटेंशियल को बताना है. तो ऑप्शंस दिया है. ऑप्शन नंबर ए 8 वोल्ट 4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 6 वोल्ट 6 वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द 9 वोल्ट एंड 3 वोल्ट. तो सबसे पहले हमें दो कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ना है. तो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6. तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी? 3 2 जा 6. तो हम लिख सकते हैं 1/c इक्वल टू 1/3. एलसीएम टेक लेना है अपने को, तो एलसीएम इसका 6 होगा. 3 2 जा 6 प्लस 1 मतलब 3/6. तो c क्या होगा? व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 6/3. तो यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड. ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैराड्स. बट वी वांट टू फाइंड द, यहाँ पे वोल्टेज दिया है, वी वांट टू फाइंड द q. देन आफ्टर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ q इन 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वी नो c इक्वल टू क्या होता है? q इंटू बी. तो q इक्वल टू क्या होता है? सी बी होता है. और जबकि आपको पता है कि c की वैल्यू आई है 2 और जो वोल्टेज दिया है वो है 12, तो आंसर आएगा 24. ठीक है, माइक्रो कूलम. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. बट वी वांट टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटर अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड पे हमें बताना है पोटेंशियल क्या है और 6 माइक्रोफैराड पे पोटेंशियल क्या है. जबकि हमारे पास चार्ज हमारे पास है 24 माइक्रो कूलम और कैपेसिटर दिया है, तो इजीली वी कैन गेट द पोटेंशियल्स. ओके, तो चलिए अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं. तो पोटेंशियल का फार्मूला से करने से पहले तो हम c इक्वल टू q/b लिखेंगे. अगर हमें b चाहिए तो क्या करेंगे? पहले के लिए अगर निकाल रहे हैं, अगर b1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? q/c1. तो यहाँ पे हमारा चार्ज आया था 24 माइक्रोफैराड बाई कितना है? 3 माइक्रोफैराड. कितना है? चार्ज क्या है? माइक्रो कूलम था, नॉट फैराड. ओके, तो ये आएगा 3 माइक्रोफैराड. तो कूलम के कैंसिल होगा. 3 8 जा 24. कहने का मतलब जो हमारा पोटेंशियल्स आएगा वो पहला आएगा 8 वोल्ट. इसी तरह से सेम वे वी विल फाइंड द सेकंड पोटेंशियल फॉर 6 माइक्रो के लिए. तो v इक्वल टू आएगा, वैल्यूज़ हमारे पास होगी दूसरी, c इक्वल टू q इक्वल टू, अगर हम b निकाल रहे हैं c इक्वल टू q/b ही होता है. और यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकालने वाले हैं b की, तो क्या हो जाएगा? q/c.
और जो हमारे पास वैल्यूज़ है B2 निकाल रहे हैं हम दूसरे के लिए, इसको B2 लिख सकते हैं, यहाँ B2 लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई कितना है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा, तो हमारा B2 की वैल्यू क्या आ गई 4 वोल्ट। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड कि पहले का 8 वोल्ट आएगा, दूसरे का 4 वोल्ट आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये 8 वोल्ट और 4 वोल्ट का कोई ऑप्शन है। तो लेट्स चेक वन टाइम व्हाट इज़ करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज द ए इज़ द करेक्ट आंसर। 8 वोल्ट फॉर 3 माइक्रोफैराड के लिए आएगा और 6 माइक्रोफैराड के लिए हमारा आंसर आएगा 4 वोल्ट, जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, तो in this way you can find the answer of question number 14. Next question, question number 15, you can see the electric charge of the 425 microfarad is removed from the fully charged capacitor of capacitance 8.5 माइक्रोफैराड है, पोटेंशियल विल बी लोअर्ड बाई। तो इसमें पोटेंशियल निकालना है, वैल्यू जल्दी से आपको रखना है, आंसर आ जाएगा। जबकि आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पोटेंशियल वाला C इक्वल टू क्या होता है Q बाई B होता है, सिंपल सा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द V। अगर हमें B निकालना है तो B इक्वल टू क्या होगा Q बाई C, और Q की वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई है 425 माइक्रोफैराड कितना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द वोल्टेज। तो कितना आएगा 425 माइक्रोकूलम बाई 8.5 माइक्रो, ठीक है फैराड। तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा 8 5 जब मतलब कितना होगा 15 ईयर वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज डी, 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस गिवन क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा करेक्ट आंसर है और 15 का 15 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। हमें बताना है कि कितने जो है 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर किस तरह से जोड़े, किस तरह से कनेक्ट करें कि हमारा जो आंसर है रिजल्ट है वो 5 माइक्रोफैराड आ जाए। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर हमें बताना है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर सीरीज में करें, और यहाँ पे तो अगर हम सीरीज में अगर इसको जोड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर हम क्या करेंगे पैरेलल जोड़ देंगे, ठीक है दिख रहा है ना। तो ये इसके पैरेलल जोड़ देते हैं तो फिर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, देखिए तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसका 2 2 सीरीज में तो 4 हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड। और इनको दोनों को अगर जोड़ते हो आप किस में सीरीज़ में तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड आएगा। और अब देख सकते हो कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस और ये दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल ही है, तो आप जोड़ सकते हो 1 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो ही जाता है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है। तो 1 प्लस 4 हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड है। तो हमने कितने रेजिस्टेंस जोड़े थे, कितने कैपेसिटर जोड़े थे 4 रेजिस्टेंस जोड़े थे, जिसमें से 2 पैरेलल था और 2 सीरीज में था, और उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल थे। तो 4 हमने यूज़ किए थे कैपेसिटर। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने थे 4 थे। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ इसको 1-2 बार ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इजी तो लगता है लेकिन करने बैठेंगे तो फिर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को समझ करके करना है। ऐसे ही क्वेश्चन मनी टाइम आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which remain connected to a battery, then the charge on the plate relative to earlier charge is more, less or may be more and same। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। When the dielectric slab is introduced between the plate of parallel plate capacitor which remain connected to a battery, then charge on the plates relative to earlier charge is, ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन नंबर बी लेस, ऑप्शन नंबर सी है लेस आर मे बी मोर, एंड ऑप्शन नंबर डी है सेम। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज
more. Option number A is the correct answers of question number 17. Okay, now next question number 18 पे चलते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. एवरीवन कैन गिव द करेक्ट आंसर. चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज. ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो इसमें हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आल्सो स्केलर क्वांटिटी. तो बचा क्या है? ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द वेक्टर फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी the surface density of the charge is measure. सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे मेजर की जाती है, उसकी यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर क्यूब एंड जूल पर कूलम. तो करेक्ट आंसर इसका है, सभी को पता कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और सेकंड में भी है. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? जबकि हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा का इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई एरिया. अब क्यू का क्या होता है यूनिट? यूनिट ऑफ क्यू क्या होता है? कूलम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है. तो कूलम पर मीटर स्क्वायर या फिर कूलम मीटर की पावर -2. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 इज बी कूलम मीटर की पावर -2 या कूलम मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19. अब हमें लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. क्वेश्चन नंबर 20, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज गिवन इज टेकन एज. ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. बोलिए क्या होना चाहिए आंसर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज. तो करेक्ट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट बताइए क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सोच करके कमेंट करिए, इसके बाद आंसर तो मैं बताने वाला ही हूँ क्या है. तो यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपको कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितनी तैयारी है. ठीक है, ये इससे आइडेंटिफाई होगा. तो प्लीज़ आंसर बहुत जल्दी दीजिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कौन सा आंसर होना चाहिए? 0 is the correct answers of question number 20. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. तो इन दिस वे वी हैव completed 1 to 20 क्वेश्चंस. ओके, आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा. और एक बार ज़रूर इसको रिवाइज करना और नोट्स तैयार करिए, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ओके, थैंक यू.